নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটামলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 9ৰ হিন্দী ইলেক্টিভ আলোক ভাগৱানৰ দোহা দশক বুলি যিটো পাঠ আছে সেই পাঠটোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টিয়ে তোমালোকক উপকৃত কৰিব। প্ৰথম যিটো আছে সেইটো আছে সহি বিকল্প কা চয়ন কৰো, যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো বাছি উলিয়াব দিছে। प्रश्नটো আছে कवि बिहारी लाल किस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिहारी लालक कोनটো সময়ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবি বুলি কোৱা হয়। এৰ আনসাৰটো হ'ব ৰীতিকাল, যেটো 2 নম্বৰ আছে সেইটো হ'ব ৰীতিকাল के। नेक्स्ट ख नंबर 2 कविवर बिहारी की काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होने वाले मुगल सम्राट थे। बिहारी लाলৰ কাব্য প্ৰতিভাৰ দ্বাৰা প্ৰসন্ন হোৱা বা সন্তুষ্ট হোৱা মুঘল সম্ৰাটজন কোন আছিল? ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব শাহজাহাं। 3 নম্বৰটো শাহজাহাं। নেক্সট প্ৰশ্ন कवि बिहारी का देहावसान कब हुआ था। बिहारी लाলৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে? ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 4 নম্বৰটো 1663 ইন মে। 1663 চনত কবি बिहारी लाলৰ মৃত্যু হৈছিলে। नेक्स्ट श्री कृष्ण के सिर पर क्या शोभित है। श्री कृष्णर শিৰত মূৰত কি শোভিত হৈ আছে? ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব মুকুট। শ্ৰীকৃষ্ণ के सिर पर मुकुट शोभित है। শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিৰত মুকুট শোভিত হৈ আছে। नेक्स्ट कवि बिहारी ने किन्हें सदा साथ रहने वाली संपत्ति माना है। ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব यदुपति कृष्ण को। 3 নম্বৰটো यदुपति कृष्ण को। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन शुद्ध है या अशुद्ध बताओ। তলৰ কথাখিনি শুদ্ধ নে অশুদ্ধ ক'ব দিছে। हिंदी के समस्त कवियों में फिर बिहारी लाल अग्रिम पंक्ति के अधिकारी है। हिंदीर कविসকলৰ ভিতৰত বিহাৰী লালক এজন মানে আগশাৰীৰ কবি বুলি কোৱা হয়। এইটো শুদ্ধ, আমি কবি পৰিচয়খিনিত পঢ়িছোঁ, এইটো শুদ্ধ হয়। नेक्स्ट ख नंबर 2 कविवर बिहारी को संस्कृत और प्राकृत के प्रसिद्ध काव्यों के अध्ययन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। कवि बिहारी लाले সংস্কৃত আৰু প্ৰাকৃত ভাষাৰ প্ৰকৃত কাব্যসমূহ অধ্যয়ন কৰাৰ সুযোগ পোৱা নাছিলে বুলি কৈছে, কিন্তু এইটো অশুদ্ধ হয়। তেওঁ সুযোগ পাইছিলে, এইটো ভুল, ইয়াতে দিয়াটো ভুল। नेक्स्ट 1645 इन के आसपास कवि बिहारी বৃত্তি लेने जयपुर पहुँचे। এইটো শুদ্ধ, এইটো সময়তে তেওঁ বৃত্তি ল'বলৈ জয়পুৰলৈ গৈছিলে। नेक्स्ट प्रश्न कवि बिहारी के अनुसार ओछा व्यक्ति भी बड़ा बन सकता है। कवि बिहारी लाলৰ মতে ওছা ব্যক্তিও মানে নিষ্মনৰ ব্যক্তিও মানে মহান হ'ব পাৰে বা ডাঙৰ হ'ব পাৰে, এইটো ভুল। যিবিলাকৰ মনটো ভাল হয় সেইবিলাক ব্যক্তিহে কবি বিহাৰী লালৰ মতে ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰে। नेक्स्ट कवि बिहारी का कहना है कि दुर्दशाग्रस्त होने पर भी धन का संचय करते रहना कोई नीति नहीं है। कवि बिहारी लाলে কৈছে যে দুৰ্দশাগ্ৰস্ত হ'লেও মানে পইচা নাথাকিলেও ধন সঞ্চয় কৰাটো ভাল নীতি নহয়, এইটো শুদ্ধ। তেওঁ এনেকৈ কৈছিলে যে তেতিয়া ধন সঞ্চয় আমি কৰিব নালাগে। नेक्स्ट प्रश्न पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। संपूर्ण वाक्य उत्तर दिया। कवि बिहारी ने मुख्य रूप से कैसे दोहों की रचना की है। कवि बिहारी लाले मुख्य रूपत कोनबुर दोहा रचना करिसे। कवि बिहारी ने मुख्य रूप से प्रेम श्रृंगार दोहों की रचना की है। कवि बिहारी लाले मुख्यभावे प्रेम श्रृंगार दोहाসমূह रचना करिसे। আকৌ प्रश्नটো कवि बिहारी ने मुख्य रूप से कैसे दोहों की रचना की है। बिहारी लाले मुख्य रूपत माने मेनली मुख्य रूपत कोनबिलाक दोहा रचना करिसे। कवि बिहारी ने मुख्य रूप से प्रेम श्रृंगार दोहों की रचना की है। कवि बिहारी ने मुख्य रूप से प्रेम श्रृंगार दोहाबिलाक रचना কৰিছিল। আৰু যদি গৌণৰ ওপৰত সুধে তেতিয়াহ'লে ভক্তি আৰু নীতিপৰক दोहाबिलाक তেওঁ গৌণভাৱে কমকৈ ৰচনা কৰিছিলে মানে সেইবিলাক। नेक्स्ट प्रश्न আছে कविवर बिहारी किनके आग्रह पर जयपुर में ही रुक गए। कवि बिहारी लाले কাৰ আগ্ৰহত জয়পুৰতে থাকি গৈছিলে। তেওঁ জয়পুৰত বৃত্তি ল'বলৈ গৈছিলে আৰু পিছত তাৰ এজন ৰজাৰ অনুৰোধত তেওঁ তাতে থাকি গৈছিলে আৰু তেওঁৰ পৰা এক আৰচফিৰ মানে বাবদ এটাকৈ দোহা তেওঁ ৰচনা কৰিছিলে। कविवर बिहारी महाराज जयसिंह और सुहानी रानी के आग्रह पर जयपुर में ही रुक गए। कविवर बिहारीয়ে महाराज जयसिंह আৰু सुहानी रानीৰ আগ্ৰহত জয়পুৰতে থাকি গৈছিলে। তেওঁ বৃত্তি ল'বলৈ গৈ জয়পুৰত থাকি গৈছিলে। कविवर बिहारी किनके आग्रह पर जयपुर में ही रुक गए। कविवर बिहारी महाराज जयसिंह और सुहानी रानी के आग्रह पर जयपुर में ही रुक गए। कवि बिहारीয়ে महाराज जयसिंह আৰু सुहानी रानीৰ আগ্ৰহত জয়পুৰতেই থাকি গৈছিলে। মোগল সম্ৰাট শাহজাহাও তেওঁৰ
মানে ৰুহাত প্ৰসন্ন হৈছিলে, ঠিক তেনেকৈ মহাৰাজ জয় সিং আৰু সুহানী ৰাণীও তেওঁৰ এই ৰচনাবিলাকত প্ৰসন্ন বা সন্তুষ্ট হৈছিলে। नेक्स्ट प्रश्न, कवि बिहारी की ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? कवि बिहारी लाলৰ একমাত্ৰ যিখন আধাৰ গ্ৰন্থ আছে এইখন কি নামেৰে প্ৰসিদ্ধ? कवि बिहारी की ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ सच्चाई नाम से प्रसिद्ध है। कवि बिहारी लाলৰ খ্যাতিৰ একমাত্ৰ আধাৰ গ্ৰন্থখন सच्चाई নামেৰে প্ৰসিদ্ধ আৰু এইখন পিছত बिहारी सच्चाई नाम से এইটো নামেৰে জনা গৈছিলে। कवि बिहारी की ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? कवि बिहारीर ख्यातिर एकमात्र आधार ग्रंथখন কি নামেৰে প্ৰসিদ্ধ? कवि बिहारी की ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ सच्चाई नाम से प्रसिद्ध है। कवि बिहारीर ख्यातिर एकमाত্ৰ आधार গ্ৰন্থখন কি নামেৰে প্ৰসিদ্ধ? सच्चाई नाम से प्रसिद्ध। পিছত এখন बिहारी सच्चाई নামেৰে জনা গৈছিলে। नेक्स्ट प्रश्नটো আছে, किसमें किससे 100 गुनी अधिक मादकता होती है? সুধিছে যে কিহতকৈ বেছি 100 গুণ মাদকতা থাকে বা 100 গুণ বেছি মাদকতা কিহত বেছি থাকে? धतूरे में सोने से 100 गुनी अधिक मादकता होती है। ধতুৰাত সোণতকৈ 100 গুণ বেছি কি থাকে? মাদকতা থাকে। মানে কি হয়, কয় যে সোণে মানুহক পাগল কৰে, কিন্তু ধতুৰা গুটি যদি মানুহে খাই দিয়ে তেতিয়াও মানুহ পাগল হ'ব পাৰে। আনকি ইমানেই বেছি নিচা থাকে তাত, ইমানেই বেছি মানুহক পাগল কৰে যে মানুহৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। প্ৰশ্নটো সুধিছে, কিসমে কিসছে 100 গুণী অধিক মাদকতা হতি হে? কিহতকৈ বেছি 100 গুণ মাদকতা থাকে? আনচাৰটো হ'ব ধতুৰে মে সোনে সে 100 গুণী অধিক মাদকতা হতি। ধতুৰাত সোণতকৈ 100 গুণ বেছি মাদকতা থাকে। नेक्स्ट प्रश्न तो, कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से क्या क्या न गिनने की प्रार्थना की है? कविये गोपीनाथ कृष्ण की गणिब नालागे बुली प्रार्थना करिसे। कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से गुण अवगुण न गिनने की प्रार्थना की है। कविये गोपीनाथ कृष्णक কৈছে যে তেওঁৰ যিবিলাক দুখ আছে, যিবিলাক গুণ আছে সেইবিলাক গণিব নালাগে। অন্য পাপীসকলৰ লগত যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেকৈ তেওঁকো সেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি কি কৰিব লাগে? কৰুণা দান কৰিব লাগে। कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से क्या क्या न गिनने की प्रार्थना की है? कविয়ে गोपीनाथ कृष्ण কি গণিব নালাগে বুলি কৈছে? कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से गुण अवगुण न गिनने की प्रार्थना की है। कविয়ে गोपीनाथ कृष्ण गुण अवगुण गणिब नालागे বুলি কৈছে। नेक्स्ट प्रश्न, अति संक्षिप्त में उत्तर दो। সংক্ষিপ্তভাৱে উত্তৰ দিবলৈ কৈছে। এইটো তোমালোকক 25টা শব্দৰ ভিতৰত উত্তৰ দিবলৈ কৈছে। किस परिस्थिति में कविवर बिहारी काव्य रचना के लिए जयपुर में ही रुक गए? কি পৰিস্থিতিত বিহাৰী লালে কাব্য ৰচনা কৰিবলৈ জয়পুৰতে থাকি গৈছিলে? महाराज जय सिंह और सुहानी रानी के आग्रह पर कविवर बिहारी काव्य रचना के लिए जयपुर में ही रुक गए। महाराज जय सिंह और सुहानी रानीर आग्रहत बिहारीये काव्य रचना কৰিবলৈ জয়পুৰতে থাকি গৈছিলে। किस परिस्थिति में कविवर बिहारी काव्य रचना के लिए जयपुर में ही रुक गए थे? महाराज जय सिंह और सुहानी रानी के आग्रह पर कविवर बिहारी काव्य रचना के लिए जयपुर में ही रुक गए थे। महाराज जय सिंह और सुहानी रानीर आग्रहत बिहारीये काव्य रचना কৰিবলৈ জয়পুৰতেই থাকি গৈছিলে। नेक्स्ट प्रश्न আছে, यही बानक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल का भाव क्या है? এই লাইনটোৰে কি বুজাইছে বুলি কৈছে? इस वाक्य में कवि ने कहा है कि सिर पर मुकुट, कमर पर धोती, हाथ पर माला, इस रूप में श्री कृष्ण उनके मन में बसे हुए हैं। এই বাক্যটোত কবিয়ে কৈছে যে শিৰত মুকুট, কঁকালত ধুতি, হাতত মালা লৈ এইটো ৰূপতে শ্ৰীকৃষ্ণ তেওঁৰ মনত সদায় আছে। यही बानको मोह मन बसो सदा बिहारी लाल का भाव क्या है? এই বাক্যটোৱে কি বুজাইছে? इस वाक्य में कवि ने कहा है कि सिर पर मुकुट, कमर पर धोती, हाथ पर माला, इस रूप में श्री कृष्ण उनके मन में बसे हुए हैं। এই বাক্যটোত কবিয়ে কৈছে যে শিৰত মুকুট, কঁকালত ধুতি, হাতত মালা, এই ৰূপত শ্ৰীকৃষ্ণ কি হৈ আছে? সদায় তেওঁৰ মনত শ্ৰীকৃষ্ণ বিৰাজমান হৈ আছে বুলি কবিয়ে কৈছে। नेक्स्ट प्रश्नটো আছে, जो जो बुढ़ोई श्याम रंग त्यों उज्ज्वल हुई का आशय क्या है? এই লাইনটোৱে কি বুজাইছে? কবিয়ে সুধিছে
কবিয়ে কি বুজাইছে এই লাইনটোৰে সোধা হৈছে প্ৰশ্নটোত इस वाक्य में कवि ने कहा है कि काला रंग को जैसे डुबाने से अधिक उज्जवल होता है ठीक उसी तरह अनुरगी चित्त की गति को कोई नहीं जान सकता এই বাক্যটোত কবিয়ে কৈছে যে যেনেকৈ কলা ৰংটো আমি যদি ডুবাওঁ তেতিয়া ই কি হয় বেছি উজ্জ্বল হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ অনুৰাগী মনৰ গতিও কেনেকুৱা এইটো কথাও কোনে নেজানে जो जो बुरोई श्याम रंग तोय तोय उज्ज्वल होई का आशय स्पष्ट करो इस वाक्य में कवि ने कहा है कि काला रंग को जैसे डुबाने से अधिक उज्ज्वल होता है ठीक उसी तरह अनुरागी चित्त की गति को कोई नहीं जान सकता এই বাক্যটোত কবিয়ে কৈছে যে যেনেকৈ কলা ৰঙক ডুবালে যেনেকৈ সি বেছি উজ্জ্বল হৈ গৈ থাকে ঠিক তেনেকৈ অনুৰাগী চিত্ত মানে অনুৰাগী মনৰ গতিও কোনেও বুজি নাপায় মানে মনটোৱে কেতিয়া কি ভাবি থাকে কোনেও ধৰিব নোৱাৰে এইটোৱে এই বাক্যটোত কবিয়ে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে नेक्स्ट प्रश्न आतोय पर प्रसन्न हरोय कातोय लोय लगि पाय के जरिए कवि क्या कहना चाहते हैं এই বাক্যটোৰ জৰিয়তে কবিয়ে কি ক'বলৈ বিচাৰিছে इस वाक्य के जरिए कवि कहना चाहते हैं कि जैसे कांटा पैरों पर छुपता है उसी तरह अवसर मिलने पर दुष्ट व्यक्ति प्राणों का हरण भी कर सकते हैं এই বাক্যটোত কবিয়ে কৈছে যে যেনেকৈ কাইটে ভৰিত বিন্ধে ঠিক তেনেকৈ সুযোগ পালে দুষ্ট ব্যক্তিয়ে কি কৰিব পাৰে নিজৰ বেলেগৰ মানে অন্য লোকৰ প্ৰাণটো হৰণ কৰিব পাৰে आतोय पर प्राणन हरोय कातोय लोय लग पाय के जरिए कवि क्या कहना चाहते हैं इस वाक्य के जरिए कवि कहना चाहते हैं कि जैसे कांटा पैरों पर छुपता है उसी तरह अवसर मिलने पर दुष्ट व्यक्ति प्राणों का हरण भी कर सकते हैं যেনেকৈ কাইটে ভৰিত বিন্ধে ঠিক তেনেকৈ সুযোগ পালে দুষ্ট ব্যক্তিয়ে বেলেগৰ অন্য লোকৰ প্ৰাণো হৰিব পাৰে নেক্সট मन काचोय नाचोय बृथा साचोय राचोय राम का तात्पर्य बताओ এই বাক্যটোৰ तात्पर्य কি ক'বলৈ দিছে বা অৰ্থটো ক'বলৈ দিছে इस वाक्य में कवि ने कहा है कि शरीर के किसी अंग पर चित्र बनाकर मंत्र का स्मरण करके भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता सच्चे मन से पुकारने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं এই বাক্যটোত কবিয়ে কৈছে যে শৰীৰত ভগৱানৰ কিবা ছবি বনাই লৈ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি আমি ভগৱানক প্ৰসন্ন কৰিব নোৱাৰোঁ আমি কি কৰিব পাৰোঁ কেৱল সঁচা মনেৰেহে ভগৱানক প্ৰসন্ন কৰিব পাৰোঁ কিছুমান মানুহ পোৱা যায় নহয় শৰীৰত কিবা কিবি ভগৱানৰ ছবি আঁকি লয় অনবৰত মন্ত্ৰ জাপ কৰি থাকে কিন্তু তেওঁৰ মনটো যদি একেবাৰে বেয়া বেলেগৰ কথা যদি তেওঁ সদায় বেয়াকৈ ভাবে আনৰ অহিত চিন্তা কৰে সেইজন ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও হাজাৰ পূজা পাতল কৰিলেও ভগৱানক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে इस वाक्य में कवि ने कहा है कि शरीर के किसी अंग पर चित्र बनाकर मंत्र का स्मरण करके भगवान को प्रसन्न किया नहीं जा सकता सच्चे मन से पुकारने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं नेक्स्ट संक्षेप में उत्तर दो कवि के अनुसार अनुरागी चित्त का स्वभाव कैसा होता है कविर मते अनुरागी चित्तर स्वभाव केनेकुआ जैसे काला रंग डुबाने से अधिक उज्जवल हो जाता है ठीक उसी तरह अनुरागी चित्त मतलब अनुरागमयी हृदय की गति को कोई नहीं जान सकता যেনেকৈ কলা ৰং ডুবালে বেছি উজ্জ্বল হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ অনুৰাগী চিত্ত মানে অনুৰাগ জীৱনত অনুৰাগ থাকে যিখন হৃদয়ত আনৰ प्रति মৰম থাকে সেই মনৰ গতিও কোনেও নাজানে आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं बना जिसने अनुरागी चित्त के स्वभाव को जाना है আজিলৈ কোনো এজন এনেকুৱা মানুহ জন্ম লোৱা নাই যিয়ে এনেকুৱা হৃদয়ৰ কথা বুজি পায় जैसे काला रंग डुबाने से अधिक उज्जवल हो जाता है ठीक उसी तरह अनुरागी चित्तर অৰ্থটো হৈছে অনুৰাগময়ী হৃদয় যি হৃদয়ত আনৰ প্ৰতি মৰম প্ৰেম ভালপোৱা দয়া আছে তেনেকুৱা হৃদয়ৰ কি কৈছে गति को कोई नहीं जान सकता आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं बना जिसने अनुरागी चित्त के स्वभाव को जाना है सज्जन का स्नेह कैसा होता है हॉट मनोहर स्नेह केनेकुआ सज्जन के हृदय में दूसरों के लिए स्नेह दया सहानुभूति भरा हुआ होता है हॉट मनोहर हृदयत आनर प्रति स्नेह दया सहानुभूति आदि থাকে उस स्नेह में गंभीरता होती है और हेनेकुआ स्नेहत की गभीर হয় তেনেকুৱা स्नेह उसके हृदय में गंभीरता कभी कम नहीं होती তেওঁলোকৰ হৃদয়ৰ পৰা गंभीरता কেতিয়াও কমি নাযায় কিন্তু लेकिन दुर्जन का स्वभाव उसके विपरीत होता है किंतु दुष्ट व्यक्तिर स्वभाव তেওঁলোকৰ বিপৰীত হয়
जैसे कांटा पैरों पर चुभता है उसी तरह दुर्जन व्यक्ति अवसर मिलने पर दूसरों का प्राण हरता है। যেনেকৈ কাইটে নজনাকৈ ভৰিত বিন্ধে। আমি খোজকাঢ়ি গৈ থাকিলেও কাইটে আমাৰ কাইট এডাল পৰি আছিলে ভৰিত বিন্ধি গ'ল। ঠিক তেনেকৈ নজনাকৈ কি কৰিব পাৰে, সুযোগ পালে দুষ্ট ব্যক্তিয়ে কি কৰিব পাৰে, আনৰ প্ৰাণ হৰণ কৰিব পাৰে। सज्जन के हृदय में दूसरों के लिए स्नेह दया सहानुभूति भरा हुआ होता है। उस स्नेह में गंभीरता होती है। उसकी हृदय से गंभीरता कभी कम नहीं होती। लेकिन दुर्जन का स्वभाव उसके विपरीत होता है। जैसे कांटा पैरों पर चुभता है उसी तरह दुर्जन व्यक्ति अवसर मिलने पर दूसरों का प्राण हरता है। नेक्स्ट प्रश्न, धन के संचय के संदर्भ में कवि ने कौन सा उपदेश दिया है? धन संचय करा सन्दर्भत कविये की उपदेश दिसे? कवि ने कहा है कि दुर्दशाग्रस्त होने पर भी धन का संचय करना कोई नीति नहीं है। कविये কৈছে যে दुर्दशाग्रस्त হলেও धन संचय करातो কোনো नीति নহয়। अगर खाने और खर्च करने के बाद भी पैसा बच जाए तो उस स्थिति में करोड़ों की संख्या में धन की संचय करना चाहिए। যদি খোৱা আৰু খৰচ কৰাৰ পিছত পইচা বাচি যায়, পইচা ৰৈ যায়, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে, সেইটো স্থিতিত আমি কৰোৰৰ কোটিৰ সংখ্যাত ধন সঞ্চয় কৰিব লাগে। कवि ने कहा है कि दुर्दशाग्रस्त होने पर भी धन का संचय करना कोई नीति नहीं है। अगर खाने और खर्च करने के बाद भी पैसा बच जाए तो उस स्थिति में करोड़ों की संख्या में धन की संचय करना चाहिए। যদি খোৱা আৰু খৰচ কৰাৰ পিছত পইচা বাচি যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো স্থিতিত আমি কি কৰিব লাগে, कोटिर घरत धन संचय কৰিব লাগে। धन के संचय के संदर्भ में कवि ने कौन सा उपदेश दिया है? कवि ने कहा है कि दुर्दशाग्रस्त होने पर भी धन का संचय करना कोई नीति नहीं है। अगर खाने और खर्च करने के बाद भी पैसा बच जाए तो उस स्थिति में करोड़ों की संख्या में धन की संचय करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, दुर्जन के स्वभाव के बारे में कवि ने क्या कहा है? दुर्जनर स्वभावर विषय कविये की কৈছে? कवि ने कहा है कि कभी भी दुर्जन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कविये কৈছে যে কেতিয়াও दुर्जन মানুহক বিশ্বাস কৰিব নালাগে, क्योंकि दुर्जन लोग अपने आप को नम्र दिखाते हैं। ये दुर्जन মানুহবিলাকে কি কৰে, নিজকে নম্ৰ দেখুৱায়। पर जैसे पैरों पर कांटा चुभता है उसी तरह अवसर मिलने पर दुर्जन व्यक्ति दूसरों का अपकार भी कर सकते हैं। কিন্তু যেনেকৈ ভৰিত কাঁইটে বিন্ধে তেনেকৈ সুযোগ পালে এই ব্যক্তিবিলাকে বেলেগৰ অপকাৰ কৰিব পাৰে। बल्कि वे लोग दूसरों के प्राणों का हरण भी कर सकते हैं। আনকি তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে বেলেগৰ প্ৰাণো হৰণ কৰিব পাৰে, প্ৰাণটো হৰিব পাৰে, বেলেগৰ মৃত্যুমুখতো পেলাব পাৰে। कवि ने कहा है कि कभी भी दुर्जन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्जन लोग अपने आप को नम्र दिखाते हैं। पर जैसे पैरों पर कांटा चुभता है उसी तरह अवसर मिलने पर दुर्जन व्यक्ति दूसरों का अपकार भी कर सकते हैं। बल्कि वे लोग दूसरों के प्राणों का हरण भी कर सकते हैं। कविये কৈছে যে কেতিয়াও দুষ্ট মানুহক বিশ্বাস কৰিব নালাগে, কাৰণ কি কৰিব পাৰে, দুৰ্জন এই দুষ্ট মানুহবিলাকে নিজকে নম্ৰ দেখুৱায়, এনেকুৱা দেখুৱায় যে তেওঁলোকে একোৱে নাজানে, কিন্তু সুযোগ পালে তেওঁলোকে বেলেগৰ উপকাৰ কৰে, বেলেগৰ প্ৰাণো তেওঁলোকে হৰণ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। नेक्स्ट प्रश्न, कवि बिहारी किस बेस में अपने आराध्य कृष्ण को मन में बसा लेना चाहते हैं? कवि बिहारीये তেওঁৰ आराध्य कृष्ण की रूपत निजर मनत सोमाई लब विचारिছে। कवि बिहारी के मन में श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम भक्ति और श्रद्धा है। कवि बिहारीर मनत श्री कृष्णर प्रति यथेष्ट प्रेम आछे, भक्ति आछे और श्रद्धा आछे। कवि बिहारी श्री कृष्ण को अपने मन में बसा लेना चाहते हैं। कवि बिहारीये श्री कृष्णक निजर मनत सोमाई लब विचारिছে। सिर पर मुकुट पहनकर, कमर पर पीला रंग का धोती पहनकर, हाथों में माला लेकर, शिरत मुकुट पिंधी, कोकालत हालधिया धुती पिंधी, हाथत माला लई, इस रूप में कवि बिहारी लाल श्री कृष्ण को अपने मन में बसा लेना चाहते हैं। ये रूपत कवि बिहारी लाले श्री कृष्णक তেওঁৰ मनत सोमाई लब विचारिছে। कवि बिहारी के मन में श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम भक्ति और श्रद्धा है। कवि बिहारी श्री कृष्ण को अपने मन में बसा लेना चाहते हैं। सिर पर मुकुट पहनकर, कमर पर पीला रंग की धोती पहनकर, हाथों में माला लेकर, इस रूप में कवि बिहारी लाल श्री कृष्ण को अपने मन में बसा लेना चाहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, अपने उद्धार के प्रसंग में कवि ने गोपीनाथ कृष्ण जी से क्या निवेदन किया है? নিজৰ উদ্ধাৰৰ প্ৰসংগত কবিয়ে গোপীনাথ শ্ৰীকৃষ্ণক কি কৈছে, কি प्रार्थना কৰিছে? अपने उद्धार के प्रसंग में कवि ने गोपियों के नाथ कृष्ण जी से करुणा लाने की बात की है। নিজৰ উদ্ধাৰৰ প্ৰসংগত কবিয়ে গোপীসকলৰ নাথ, যাক কোৱা হয় গোপীনাথ, শ্ৰীকৃষ্ণৰ অন্য এটা নাম গোপীনাথ, গোপীনাথক কৈছে যে তেওঁ মনত কি কৰিব লাগে, কবিৰ প্ৰতি কৰুণা আনিব লাগে। कवि ने कहा है कि कृष्ण अन्य पापियों के साथ जैसा बर्ताव करता है ठीक उसी तरह उनके साथ भी बर्ताव करे और गुण अवगुण की गणना मत करे। আৰু কৈছে যে শ্ৰীকৃষ্ণ অন্য পাপীসকলৰ লগত যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে কবি বিহাৰীলালৰ প্ৰতিও শ্ৰীকৃষ্ণই তেনেকুৱাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু যিবিলাক তেওঁৰ গুণ আছে, বেয়া গুণ আছে, সেইবিলাক ইমান গণনা কৰি থাকিব নালাগে। अपने उद्धार के प्रसंग में कवि ने गोपियों के नाथ कृष्ण जी से करुणा लाने की बात की है। कवि ने कहा है कृष्ण अन्य पापियों के साथ जैसा बर्ताव करता है ठीक उसी तरह उसके साथ भी बर्ताव करे और गुण अवगुण की गणना मत करे। नेक्स्ट प्रश्न, कवि बिहारी की लोकप्रियता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करो। कवि बिहारीलाলৰ लोकप्रियता সম্পৰ্কে এটা সৰু এটা টিপ্পনী লিখিব দিছে। कविवर बिहारी लाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कवि बिहारी लालक हिंदी साहित्यर अंतर्गत रीतिकालर बहुतकेइटा काल আছে हिंदी साहित्यर, तार এটা प्रधान काल আছে रीतिकाल। এই रीतिकालर एजन सर्वश्रेष्ठ कवि বুলি তেওঁক ধৰা হয়। हिंदी के समस्त कवियों में वह अग्रिम पंक्ति के अधिकारी है। हिंदीर समस्त कविসকলৰ ভিতৰত তেওঁ এজন আগশাৰীৰ कवि। उन्होंने प्रमुख रूप से प्रेम श्रृंगार और गौण रूप से भक्ति एवं नीति के दोहों की रचना करके अपार लोकप्रियता प्राप्त की थी। তেওঁ मुख्य रूपत प्रेम श्रृंगार और गौण रूपत भक्ति और नीति दोहाসমূह रचना करी लोकप्रियता अर्जन কৰিছিলে। उनकी यह लोकप्रियता आज भी बनी है और आगे भी रहेगी। তেওঁৰ এই लोकप्रियता আগতেও আছিলে আৰু আগলৈও এতিয়াও আছে আৰু আগলৈও থাকিব। कवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी के समस्त कवियों में वह अग्रिम पंक्ति के अधिकारी है। उन्होंने प्रमुख रूप से प्रेम श्रृंगार और गौण रूप से भक्ति एवं नीति के दोहों की रचना की थी। वे पहले भी लोकप्रिय थे, हमेशा रहेंगे। सम्यक उत्तर दो। कवि बिहारी लाल का साहित्यिक परिचय दो। कवि बिहारी लालर साहित्यिक परिचय दिबले কৈছে। कविवर बिहारी लाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। তেওঁক रीतिकालर सर्वश्रेष्ठ कवि বুলি কোৱা হয়। अन्य भाषाओं के साथ कवि बिहारी ने फारसी में भी अधिकार प्राप्त किया था और उनकी काव्य प्रतिभा से सम्राट शाहजहाँ बड़े प्रसन्न हुए और उनके कृपा पात्र बने। তেওঁ অন্য ভাষাৰ লগতে ফাৰ্চী ভাষাটো নিজৰ অধিকাৰ, ফাৰ্চী ভাষাটো নিজে অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু তাত নিজৰ অধিকাৰ দেখুৱাইছিলে বা নিজে আয়ত্ত কৰিছিলে আৰু সম্ৰাট শাহজাহাঁ তেওঁ প্ৰসন্ন হৈছিলে আৰু তেওঁ কৃপা কৰিছিলে। 1645 ईंग के आसपास बिहारी वृत्ति लेने जयपुर पहुँचे আৰু 1645 চনৰ আশে-পাশে बिहारीलाले वृत्ति ল'বলৈ जयपुरলৈ গৈছিলে। वहाँ के महाराज जय सिंह और सुहानी रानी के आग्रह पर कवि बिहारी वहाँ ही रुक गए और तार रजा महाराज जय सिंह और सुहानी रानीर आग्रहत তেওঁ তাতেই থাকি গৈছিলে। कविवर बिहारी लाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आगर प्रश्नটো আমি পাইছোঁ। अन्य भाषाओं के साथ कवि बिहारी ने फारसी में भी अधिकार प्राप्त किया था। তেওঁ অন্য ভাষাৰ লগতে ফাৰসী অধ্যয়ন কৰিছিলে और उनकी काव्य प्रतिभा से सम्राट शाहजहाँ बड़े प्रसन्न हुए और তেওঁৰ काव्य प्रतिभा देखि सम्राट शाहजहाँ प्रसन्न হৈছিলে और उनके कृपा पात्र बने और তেওঁক বহুতো पुरस्कार দিছিলে। 1645 ईंग के आसपास बिहारी वृत्ति लेने जयपुर पहुँचे और 1645 চনৰ আশে-পাশে बिहारीलाले वृत्ति ল'বলৈ জয়পুৰলৈ গৈছিলে আৰু সেইটো সময়ত জয়পুৰৰ ৰজা আছিলে কোন? মহাৰাজ জয় সিং আৰু সুহানী ৰাণী। তেতিয়া মহাৰাজ জয় সিং তাৰ ৰজা আছিলে আৰু তেওঁৰ ৰাণীৰ নাম আছিলে সুহানী আৰু তেওঁলোকে বিহাৰীলালক ইমানেই আগ্ৰহ দেখুৱাইছিলে যে তেওঁলোকৰ আগ্ৰহৰ কাৰণে কি কৰিছিলে? বিহাৰীলালে জয়পুৰতে থাকি গৈছিলে। बुझ पाला सके। कविवर बिहारी लाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं।
अन्य भाषाओं के साथ बिहारी ने फारसी में भी अधिकार प्राप्त किया था और उनकी काव्य प्रतिभा से सम्राट शाहजहां बड़े प्रसन्न हुए और उनके कृपा पात्र बने। 1645 ईंग के आसपास बिहारी वृत्ति लेने जयपुर पहुँचे। वहाँ के महाराज जयसिंह और सुहानी रानी के आग्रह पर कवि बिहारी जयपुर में ही रुक गए। তেওঁলোকৰ মহাৰাজ জয়সিং আৰু সুহানী ৰাণীৰ আগ্ৰহত তেওঁ জয়পুৰতে থাকি গৈছিলে तथा एक असरफी की शर्त पर काव्य रचना करने लगे और एक असरफीर शर्तत তেওঁ काव्य रचना কৰিবলৈ ধৰিলে। कवि बिहारी लाल की ख्याति का आधार ग्रंथ उसका एकमात्र सच्चई ग्रंथ है। তেওঁৰ एकमात्र आधार ग्रंथখন হৈছে सच्चई, जो बिहारी सच्चई नाम से प्रसिद्ध है, যিখনক কি নামেৰে জনা যায়? बिहारी सच्चई। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, কেতিয়াবা প্ৰশ্নটো আহে মানে আহিবই আৰু। তেওঁৰ কবি বিহাৰী লালৰ একমাত্ৰ আধাৰ গ্ৰন্থখন কি? सच्चई, যিখনক কি নামেৰে জনা যায়? বিহাৰী सच्चई নামেৰে জনা যায়। পিছৰ প্ৰশ্নত আছে তোমালোকৰ सच्चईৰ বিষয়ে, বিহাৰী सच्चईৰ বিষয়ে লিখিবলৈ দিছে। নেক্সট প্ৰশ্নত আমি পাম। তো এইটো প্ৰশ্ন চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা যে কি কৰিছিলে। তেওঁ ঋতুকালৰ এজন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবি আছিলে। তেওঁ সংস্কৃত প্ৰাকৃত আদি ভাষাৰ উপৰিও তেওঁ ফৰাচী ভাষাটো ফৰাচী ভাষাতে আয়ত্ত কৰিছিলে, যাৰ ফলত তেওঁৰ কাব্যৰ প্ৰতিভা দেখি মোগল সম্ৰাট শাহজাহাঁ প্ৰসন্ন হৈছিলে আৰু তেওঁক বিভিন্ন পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰিছিলে। তাৰপিছত মহাৰাজ জয়সিং আৰু সুহানী ৰাণীৰ অনুৰোধত তেওঁ জয়পুৰতেই থাকি গৈছিলে আৰু তাত কাব্য ৰচনা কৰিছিলে। बिहारी सच्चई पर टिप्पणी लिखो। कवि बिहारी लाल की ख्याति का आधार उनका एकमात्र सच्चई ग्रंथ है। कवि बिहारी लालर ख्यातिर आधार एकमात्र ग्रंथখন হৈছে सच्चई, जो बिहारी सच्चई नाम से प्रसिद्ध है। और এইখনক কি নামেৰে জনা যায়? बिहारी सच्चई नामेৰে এই গ্ৰন্থখনক জনা যায়। यह लगभग 700 दोहों का अनुपम संग्रह है। एखনত किमानटा दोहा আছে? 700 दोहा एखনত পোৱা যায়। इसे श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी भी कहते हैं। ইয়াক श्रृंगार भक्ति और नीति त्रिवेणी বুলি কোৱা হয়। ইয়াত श्रृंगारो আছে, भक्तिও আছে, नीतिও আছে। इस ग्रंथ की लोकप्रियता के संदर्भ में यूरोपीय विद्वान डॉक्टर गियर्सन ने कहा है कि यूरोप में इसके समकक्ष कोई भी ग्रंथ नहीं है। ইয়াৰ লোকপ্ৰিয়তা সন্দৰ্ভত ইউৰোপীয় বিদ্বান ডক্টৰ গিয়াৰছনে কৈছে যে ইউৰোপত ইয়াৰ সমকক্ষ গ্ৰন্থ একোৱেই নাই, ইমানেই গ্ৰন্থখন উৎকৃষ্ট মানৰ। कवि बिहारी लाल की ख्याति का आधार उनका एकमात्र सच्चई ग्रंथ है, जो बिहारी सच्चई नाम से प्रसिद्ध है। यह लगभग 700 दोहों का अनुपम संग्रह है। इसे श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी भी कहते हैं। इस ग्रंथ की लोकप्रियता के संदर्भ में यूरोपीय विद्वान डॉक्टर गियर्सन ने कहा है कि यूरोप में इसके समकक्ष कोई भी ग्रंथ नहीं है। कवि बिहारी लाলৰ খ্যাতিৰ একমাত্ৰ আধাৰ গ্ৰন্থখন হৈছে सच्चई, যিখনক কি নামেৰে জনা যায়? বিহাৰী सच्चई। আৰু ইয়াত কিমানটা দোহা, অনুপম দোহা সংগ্ৰহ কৰি থোৱা আছে? কিমানটা দোহা আছে? 700। ইয়াত শৃংগাৰ ভক্তি আৰু নীতি ত্ৰিবেণী বুলিও কোৱা হয়। আৰু এই গ্ৰন্থখন ইমানেই লোকপ্ৰিয় যে এইখন অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত ইউৰোপীয় বিজ্ঞান ডক্টৰ গিয়াৰছনে কৈছিলে যে ইউৰোপত ইয়াৰ সমকক্ষ কোনো এখন গ্ৰন্থই নাই। মানে ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাইছোঁ? মানে এই গ্ৰন্থখন কি? এই গ্ৰন্থখন যথেষ্ট উৎকৃষ্ট মানৰ। তোমালোকে কেতিয়াবা সুবিধা পালে, মানে বুজি নাপালেও তোমালোকে গ্ৰন্থখন পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা, বা ইউটিউবত তোমালোকে পাবা ইয়াৰ অসমীয়াবিলাক, সেইবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। বহুত কথা, জীৱনৰ বহুত কথা সেইখিনি পঢ়িলে তোমালোকে জানিব পাৰিবা। गागर में सागर भरने के समान कविवर बिहारी ने दोहे जैसे सोते सोते संद में लंबी चौड़ी बात भी संक्षेप में कह दी है। যেনেকৈ সাগৰৰ পানী মানে অকণমান হেৰিত ভৰাই ল'লে, সাগৰৰ পানী যেনেকৈ ভৰাব পাৰি কম হেৰিত নিচিনাত, মানে ফুৰুকাত হাতী বঢ়োৱা বুলি যে কয়, মানে ইমান ডাঙৰ হাতী এটা সৰু বস্তু এটাত ভৰাই লোৱা, যেনেকৈ শংকৰদেৱে গুণমালাখন ৰচনা কৰিছিলে, ঠিক তেনেকৈ তেওঁ কি কৰিছিলে? একেবাৰে সৰুকৈ তেওঁ বিহাৰী सच्चईখন ৰচনা কৰিছিলে, কিন্তু তাত এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈছিলে যিবিলাক মানে কি হৈছিলে, একেবাৰে মানে ডাঙৰ কথা কিছুমান কৈ দিব পাৰিছিলে, ডাঙৰ নীতিবাচক কথা কিছুমান এইখনে ক'ব পাৰিছিলে। सरस मधुर और प्रौढ़ ब्रज भाषा में रचित यह दोहे काव्य रसिकों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। সহজ মধুৰ আৰু একেবাৰে নিভাঁজ ব্ৰজ ভাষাত ৰচিত এই দোহাত থকা কাব্যখনে পাঠকসকলৰ মনত কি কৰিব পাৰিছিলে? গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিছিলে।
ইমানেই উৎকৃষ্ট মানৰ আছিলে যে সহজ আছিলে, মধুৰ আছিলে, সুমধুৰ আছিলে আৰু কি নিভাঁজ আছিলে আৰু পাঠকসকলৰ মনত ই গভীৰ সাঁচ বহুৱাব পাৰিছিলে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। নেক্সট যিখিনি কুৱেশ্যন আছে মই নেক্সট ভিডিঅ'টো বহুতখিনি দীঘল হৈছে, নেক্সট মানে ভিডিঅ'ত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা। কিবা যদি তোমালোকৰ বুজি নোপোৱা আছে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধিবা আৰু লগতে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।